ترکیہ کے صدر کا برادر پاکستانی قوم کے ساتھ اپنی حمایت کا واضح اعلان۔ رجب طیب اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی پر ہمیں خوشی ہے۔ ہم نے کشمیر میں وحشیانہ دہشت گردانہ حملے اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا، ان سے اہم گفتگو ہوئی۔ پاکستانی بھائیوں کو ان کے صبر و تحمل اور دانشمندانہ موقف پر ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ انشاءاللہ برادر پاکستانی قوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص، شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کو کہاں دھول چٹائی، تفصیلات سامنے آ گئی۔ پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی میں بھارتی ایئر فورس کے متعدد طیارے گر کر تباہ ہوئے۔ بھارتی طیاروں کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ ہیں۔ ایک طیارہ اننت ناگ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے پائلٹ کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ دوسرا طیارہ پامپوریا پلوامہ کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا، جس کے دونوں پائلٹ شدید زخمی حالت میں سری نگر اسپتال منتقل کیے گئے۔ ایک اور لڑاکا طیارہ پنتھیال ضلع رام بن کے علاقے میں گرا۔ ایک طیارہ بھردہ کلاں تحصیل اکھنور کے زرعی کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا۔ ایک طیارہ بھٹنڈا کے علاقے میں بھی تباہ ہوا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ سلسلہ وار تباہی بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئے ہیں۔ کے بزدلانہ حملوں میں 40 شہری اور 11 جوان شہید ہوئے۔ پاک آرمی کے 6 جوان، ایئر فورس کے 5 افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی جوہریت سے مسلح افواج کے 78 جوان زخمی ہوئے۔ 7 خواتین اور 15 بچے بھی شہداء میں شامل۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستانی فوج نے بلا اشتعال اور وحشیانہ حملے شروع کیے، جن میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی قربانیاں جرأت، جذبے اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بھارتی جوہریت نے پوری قوم کو مزید مضبوط اور متحد کر دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پوری قوم پاک فضائیہ کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہمیں اپنے شہداء کی قربانیوں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فوج پاکستان کے بہادر افسران اور جوانوں نے وطن سے کیا اپنا عہد پورا کیا۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کے اہل خانہ کی کفالت کی ذمہ داری ریاست بھرپور طور سے انجام دے گی۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے الزامات مسترد کر دیے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے، بھارتی بیانات اشتعال انگیز اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے۔ پہلگام حملے کا الزام بغیر ثبوت کے لگایا گیا۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ جنگی مہم جوئی کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ جنگ بندی دوست ممالک کی سہولت کاری سے ممکن ہوئی۔ پاکستان کی طرف سے جواب صرف فوجی اہداف تک محدود تھا۔ بھارت کی جانب سے عام شہریوں پر حملہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان کو مایوسی اور شکست خوردگی کا شکار قرار دینا بھارت کا ایک اور صریح جھوٹ ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پوری قوم کے ہیرو، دشمن کو جس طرح شکست دی اور فرنٹ فٹ سے مسلح افواج کو لیڈ کیا، اس سے پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب۔ دونوں ممالک کے درمیان ہتھیاروں کی خریداری کا $142 بلین کا معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان توانائی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کی تربیت اور تکنیکی تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان صحت اور طبی ریسرچ میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گھڑ سواروں کے حصار میں سعودی شاہی محل آمد۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا۔ امریکی صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔
after having seen our escalation, rather counter-escalation, and in defense, I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next moves. And what did they say to you then? No, they all. I had a call after Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of Right May. after the counter strikes? Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. पाकिस्तान वाजे कर चुका सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। भारत पहले जंग बंदी पर आमादा हुआ, फिर पाकिस्तान ने हिमायत की। हफ्ते को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने राबता करके बताया भारत जंगी के बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जवाब में कहा, अगर भारत दोबारा जहरियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। नायब वजीर खारजा का CNN को इंटरव्यू, कहा हमारे जवाबी हमलों के बाद अमेरिका को एहसास हुआ कशीदगी बढ़ सकती है। उधर गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ताहाल पानी की फराहमी बंद नहीं हुई। भारत पाकिस्तान से मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला आवाम करेगी। भारतीय वजीर आजम पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीजें इतनी बिखर चुकी कि वो समेट नहीं सकेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी एजेंडे पर हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा के बयानात से साबित होता है। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का बाकायदगी से दौरा करते हैं। भारत दहशतगर्दों को तिब्बी इलाज की सहूलियात भी मुहैया करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियों के निर्ख दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चौबुर्जी के इलाके में बाजार का दौरा भी किया। कहा मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। आशिक किरमानी ने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। बानी PTI से अडयाला जेल में तीनों बहनों की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला की भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो। बानी और बुशा बीबी की रिहाई हो। लीडरों के मुकदमात और पकड़ धकड़ का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। बानी ने कहा है पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है, वो इस वक्त सख्त गुस्से में होगा।
जंग में 60% गेम दिमाग की होती है। मुझे खदशा है कि मोदी दोबारा कुछ करेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बताया। बानी ने कहा कि मेरी तरजीह तहरीक है, पीएसी नहीं। जुनेद अकबर पर छोड़ रहे हैं, वो कौन से ओहदे पर रहना चाहते हैं। उधर रुकने कौमी असेंबली जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। कहा यह ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफा जमा करवाया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के परोल पर रिहाई की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरखास्त पर समाअत करेंगे। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। भारत से अब मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की सतह पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का तकरीब से खिताब। कहा हमारी अफवाज ने भारत की नाम नेहाद बालादस्ती को मलियामेट कर दिया। भारत खित्ते में अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था। ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान ने बर्तरी में तब्दील कर दिया। दहशत गर्दों को पैगाम है, भारत अपने आप को नहीं बचा सका, अब आपको क्या बचाएगा। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑपरेशन बिन्यानुन मरसूस। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान जलसा। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात की शिरकत। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अहद दोहराया। मुकर्ररीन का कहना था दिन के उजाले में भारतीय जहरियत का जवाब देकर पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। शुरका ने कौमी तरानों के साथ वतन से वफादारी का इजहार किया। आखिर में शोहदा के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। उधर कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से सलातुल लश्कर अदा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। पाक भारत कशीदगी एलओसी पर बसने वाली सिविल आबादी पर भारतीय जहरियत गहरे असरात छोड़ गई। वादी नीलम के इलाकों जूरा और शाहकोट में भारतीय गोलाबारी में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान, एक खातून शहीद हुई। मुतासरीन का कहना है भारतीय जहरियत ने उनकी उम्र भर की मेहनत और जमा पूंजी को राख कर दिया, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। भारतीय मसालिम और गोलाबारी का डट कर मुकाबला करेंगे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। डॉक्टर इकरार अहमद खान चेयरपर्सन पंजाब ईचीसी तैनात। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को 4 साल के लिए चेयरपर्सन ईचीसी मुकर्रर कर दिया। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान 3 मरतबा वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर 2012 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। भारत पीएसएल रुकवाने में नाकाम। पीएसएल के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि पीएसएल मेगा इवेंट जहां से रुका था वहां से ही शुरू होगा। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। पीएसएल की 6 टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच के लिए माइक हेसन के नाम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच माइक हेसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, नाम कर दिया।